راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم جو جی چاہے کرو. مولانا کا جو جی چاہے کرو، مگر ایک بات کا خیال رکھو، جو جی چاہے کرو، ایک بات کا خیال رکھو. نصیحت ہم کو سیکھنا ہے. کیا کا خیال یہ رکھو کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. امام فرما رہے ہیں، امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کرو، جہاں بھی کرو، بس یہ تصور کرو کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. تو اس نے کہا کہ مولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تو وہ ہے جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ایک مدرسے میں کچھ بچے تھے، ایک استاد تھے، ایک طالب علم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور بھی طلاب تھے. ان سے تو طلاب نے سارے کہا کہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم لوگ سے کم محبت کرتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے، کل امتحان ہو جائے. کہا ٹھیک ہے، کل ایک مرغی اور ایک چھری اپنے ہاتھ میں لے کے آنا. سارے طلاب سے کہہ دیا، وہ بھی لے کے آئے. توجہ سے سنیے، انشاءاللہ لطف آئے. سب طلاب جو ہیں ایک ایک مرغی یا طائر یا پرندہ لے کے آ گئے اور چھری. اب استاد نے سارے بچوں سے کہا جاؤ اس کو ذبح کرو، مگر ایسی جگہ ذبح کرنا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو. صلوات پڑھیں محمد ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. اب سارے گئے، سب نے ذبح کر دیا. یہ وہ جو تھا وہ زندہ مرغی اور چھری لے کے آ گیا. تو ظاہر سی بات ہے کو تو برس پڑے، تو استاد کی بات نہیں مانی. مصیبت، استاد کی بات نہیں مانی. سب سے پوچھا تم نے کہا کام نے یہاں ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا یہاں ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. یہ وہ سب ذبح کر کے، اور اس سے تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ کہا میں جہاں بھی گیا ایک آدمی دیکھ رہا. کیسے ذبح کر؟ کا ایک دیکھ رہا تھا. وہ کون تھا؟ کہ وہ ہمارا پروردگار تھا. میں جہاں بھی گیا وہ دیکھ رہا تھا. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کا گناہ کرو، خوب کرو، 24 گھنٹہ کرو، جتنا جی چاہے کرو. امام کہہ رہے ہیں، ہم تھوڑی نہیں کہہ رہے. مگر ایک بات کا خیال رہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. اس نے کہا مولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو. وہ چاہے جہاں ہم چھپتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، وہ ایک دیکھنے والا ہے. وہ ایک نہیں، اس نے 2 فرشتوں کو بھی معین کیا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کرامن کاتبین، 2 فرشتے آپ کے کاندھے پر ہیں صادق بھائی. ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ان کے پاس بڑے بڑے رجسٹر ہیں، سب قرآن مجید میں، اور وہ سب لکھتے جاتے ہیں. اعمال حسنات بھی لکھتے جاتے ہیں، اعمال سیئات بھی لکھتے جاتے ہیں. اب اس کی تشریح کریں گے کسی اور مجلس میں انشاءاللہ. یہ اچھے اعمال بھی لکھتے ہیں اور برے اعمال بھی لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے سب قرآن سے میں تب ثابت کروں گا. اب مولانا نے کہا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں دیکھنے والا نہ ہو. اچھا پھر تیسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب تمہارے پاس ملک الموت آئیں، توجہ رہے آپ، امام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ملک الموت آئیں تو ملک الموت کو اپنے سے دور کر دو. ملک الموت کو اپنے پاس نہ آنے دو، اور تمہاری لمبی زندگی ہو جائے گی، جب تک جی چاہے جیو. کا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ملک الموت تو اللہ کا نمائندہ ہے، اس سے تو بڑے بڑے پہلوان ہار گئے، میں کیا ہوتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد و آل محمد. ملک الموت تو بڑے وہ ہیں جس سے بڑے بڑے پہلوان کو پٹک دیا انہوں نے، اور آج سب قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں ہے، کہاں کہاں ہے، کیا کیا ہے. کہا اس سے تو جیتنا مشکل ہی ہے، اس سے تو جیت ہی نہیں سکتے ہیں. کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، ملک الموت کو اپنے سے دفاع نہیں کر سکتے، اپنے سے دور نہیں کر سکتے، اس سے لڑائی نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں جانے کے تیار ہیں، ہمیں ابھی نہیں جانا ہے.
अभी हमें जीना है। कहा मौला वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो जब आएंगे लेके चले जाएंगे, चाहे हम रोएं चाहे चिल्लाएं चाहे हंसें जो भी करें, वो तो जब आए लेके चले गए। जैसे आज कोरोना की शक्ल में आ गया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कहा ये भी नहीं कर सकते हो? कहा नहीं मौला ये तो नहीं हो सकता है। कहा अच्छा ठीक है, चौथी बात। मौला कह रहे हैं चौथी बात क्या? कि चौथी बात क्या है? कहा चौथी बात ये है कि जब फरिश्ते तुम्हें वतल्लहुल जबीन, कुरान में है कि फरिश्ते टांग पकड़ के नहीं ले जाएंगे जहन्नम में, हाथ पकड़ के जहन्नम में नहीं ले जाएंगे, तुम्हारी पेशानी पकड़ के घसीटते हुए जहन्नम में ले जाएंगे। पेशानी का पकड़ना आसान है, जरा पकड़ के दिखाइए। पेशानी का पकड़ना आसान है, चुटकी में नहीं आएगी, मगर फरिश्ते पेशानी पकड़ के घसीट के तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। कहा जब फरिश्ते तुम्हें घसीट के जहन्नम में ले जाए ना, तब तुम जहन्नम में मत जाना। हो सकता है? कहा मौला ये भी नहीं हो सकता है। कहा फिर पांचवा रास्ता ये है कि गुनाहों से बचो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, यही नजात का रास्ता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। गुनाहों से बचो। हम आज़ाद नहीं हैं कि आप तसव्वुर ना करें कि बिल्कुल आज़ाद हैं, जब जी चाहे करें, ऐसा नहीं है। हर वक्त हमारे ऊपर अल्लाह ने दो नुमाइंदे मुअय्यन कर दिए जो कहीं छोड़ते ही नहीं, कहीं भी छोड़ते नहीं हैं, वो हर जगह साथ साथ जाते हैं और एक एक मिनट की खबर वैसे मुखबिर हैं। जो हमको खबर नहीं है वो उनको खबर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, कामयाबी के रास्ते पर जाना चाहता है, तो गुनाहों से बचे और इस्तिग़फ़ार करे, इस्तिग़फ़ार भी करे। मौला कायनात ने फरमाया कि इत्तक़ू मआसियत अल्लाह फिल खलवात फ़इन्न शाहिदा हुवल हाकिम। नजुल बलागा में है कि इत्तक़ू मआसियत अल्लाह फिल खलवात, अल्लाह से उस वक्त गुनाह करने के बारे में बचो कि जब तुम अकेले में हो। उस वक्त मजमे में थोड़ी ना आदमी गुनाह करे, मजमे में थोड़ी ना करे। जब इंसान अकेले में होता है का उस वक्त तुम गुनाहों से बचो, बचने की कोशिश करो जब तुम अकेले में हो। क्यों? इन्न शाहिदा हुवल हाकिम, वो देख भी रहा है और हाकिम भी है। सलवात पढ़े। देख भी रहा हाकिम भी। आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इमाम के बारे में मिलता है कि माह रमज़ान में तवज्जो कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि ऐसी नूरानी मजलिस हो ये कि एक एक आदमी उठे तो कुछ न कुछ लेके उठे और कुछ अहद करके उठे। हमें हमारे लिए कोई ऐसी भी मजलिस होनी चाहिए जिसमें हम अहदो पैमान करें कि हम गुनाह नहीं करेंगे, जिसमें हम अहद करें। इस मजलिस में आने का फायदा क्या है अगर हमने अपने नफ्स की इस्लाह नहीं की तो? हमने अपने नफ्स की इस्लाह नहीं की तो इस मजलिस में आने का क्या फायदा है? अगर हम यहाँ से निकल के और अपने अंदर हमने तब्दीली नहीं पैदा करी, हम तब्दील नहीं हुए, हम बदले नहीं, वज़ीरान गिरामी इस मजलिस हुसैन से हमने कुछ फायदा? मजलिस हुसैन तो अपनी जगह पर है, मुक़द्दस भी है, मुतहर भी है, मगर हमने उससे फायदा नहीं उठाया। जैसे कि हमारा लिबास नजिस है और हमने उसको नहीं धुला, मिसाल के तौर पर जैसे हमारा लिबास नजिस है, पानी पाक है, पानी से लिबास धुला जाएगा, मगर हमने नहीं धुला। माह रमज़ान में हमारे इमाम, चौथे इमाम, अब उनके जितने गुलाम होते थे सब के जो गलतियां वो करते थे इमाम उसको लिखते जाते थे, जो गलतियां करते थे। उमर जब माह रमज़ान की आखिरी तारीख होती थी ना तो इमाम सबको बुलाते थे, तवज्जो कीजिए,
इमाम को क्या कहा है? इमाम के किताब का नाम है सहीफ़े कामिला, जिसको ज़ुबूर आले मोहम्मद कहा है, इसको ज़ुबूर आले मोहम्मद कहा है। तो सारे गुनाहों को लिखते जाते थे, उसके बाद सबको जमा करते थे, सबसे कहते थे तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। जो गुलाम जो गलतियां करता था उसको लिखते जाते थे। और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दोनों हाथ को उठा के कहते थे, माबूद, इन लोगों ने जैसे गुनाह किए मैंने इन सब को माफ किया, तू भी मुझे माफ कर। मैंने इनके गुनाहों को माफ किया, तू भी मुझे माफ कर। और उसके बाद इमाम सबको आजाद कर देते थे। सलवात पढ़े। बहुत मजलूम इमाम का जिक्र है, बड़े मजलूम इमाम। खुदा की कसम, इमाम ज़ैनुल ये सारी बातें छोड़ दी मैंने, बहुत ज्यादा हो जाए। आपको साबरीन का लक़ब मिला, सैयदुस साजिदीन का लक़ब, असबरुस साबरीन का लक़ब मिला, सब्र करने वालों। कैसे सब्र करने वाले थे कि 11 मुहर्रम को जब काफिला चला तो सब नजिस लाशें दफन हो गए, मगर शुहदाए करबला दफन नहीं हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग मुतग़य्यर होने लगा। जनाब ज़ैनब ने जब देखा सज्जाद को तो कहा, बेटा क्या हालत है, हम तुम्हारी हालत देख रहे हैं कि लगता है कि तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाएगी। बेटा ऐसा नहीं है, ये लाशें भी दफन होंगे। जनाब ज़ैनब ने तसल्ली दिया सज्जाद को, ये लाशें भी दफन होंगे, यहाँ रोज़े बनेंगे, यहाँ पे ज़ायरीन आएंगे, सब जनाब ज़ैनब ने कहा था। और आज वही सब हो रहा है। सब लाशहाय अपने शोदा के लाश पर गए, मगर सईद सज्जाद ने अपने बाप को इस हालत में देखा कि जिस्म पे सर नहीं था, जिस्म पे लिबास नहीं था। हमारे इमाम ने पर्दे गैब से सलाम किया है, मेरा सलाम हो मेरे उस जद हुसैन पर जिसका जिस्म जमीन पर नहीं था बल्कि तीरों पर था। मेरे इमाम ने सलाम किया है ज़ियारत नाहिया में अपने इमाम को, अपने जद को, कि मेरा सलाम हो उस हुसैन पर जिसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया, इरबन इरबा, इरबन इरबा। दिल खोल के रोइए खुदा की। इसलिए कि मेरे सैयद सज्जाद 35 साल तक अपने बाबा को याद करके रोते रहे। वो याद क्या करते थे? जब किसी ने पूछा, ऐ सैयद सज्जाद, सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुआ, आपके ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म क्या हुआ? तो आपने ये नहीं कहा कि करबला में जुल्म हुआ, आपने कहा शाम अशाम अशाम। मेरे मौला ने 3 बार कहा शाम अशाम अशाम। तो किसी ने पूछा कि मौला ये शाम आप क्यों कहते हैं? तो आप फरमाते हैं कि हाय दरबार शाम, हाय जिंदान शाम, हाय बाजार शाम, हाय बाजार शाम। ये बाजार शाम क्या है? आपको खुदा नसीब करे जाए देखे बाजार शाम क्या है। बाजार शाम अभी भी उसी तरीके से बना था जब हम गए थे देखने के लिए, आज से 22 साल पहले। तो 2 तरफ दुकानें हैं, ऊपर से बंद है। तो सारे तमाशाई जो थे उस बाजार में आए हुए थे और अहले हरम को 4 दिन तक बाजार के बाहर खड़ा रखा गया। सईद सज्जाद को खड़ा रखा गया इसलिए कि बाजार सजा नहीं था, दरबार सजा। मेरा बाप यही करके रोता रहा, हाय बाजार शाम, हाय बाजार
शाम जनाब ज़ैनब ने कहा भैया अरे हमें यहाँ से कब जाना होगा? ऐ सज्जाद ये बताओ तो हम बहुत दिन हो गया, कई दिन हो गए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सैयद सज्जाद रो के कहते हैं ऐ बीबी अम्मा अभी दरबार सजाया नहीं कि अभी दरबार सजा नहीं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय बने सैयद सज्जाद के। सैयद सज्जाद रोते रहे और क्या कह के रोते रहे मालूम है? जब आपका गुजर अहले कसाब की तरफ से होता था, यानी कसाईयों के गलियों से जब आपका गुजर होता था, तो आप जो गोश्तफन ज़िबा हुए रहते थे, कसाई को मालूम हो जाता था, कसाब को मालूम हो जाता था कि सैयद सज्जाद आ रहे हैं, तो अपने जानवरों पर कपड़े डालते थे। अपने जानवरों पर कपड़े डाल देते थे। एक कसाब जो था उसने कपड़े नहीं डाले, उसने इमाम के आने की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसके पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ कि तुमने इसको पानी पिलाया था? तुमने इसको पानी पिलाया था? तुमने इसको खाना खिलाया था? उसने कहा मौला हम जो भी जानवर ज़िबा करते हैं ना, ज़िबा करने से पहले उसको पानी पिलाते हैं, पहले उसको सैराब करते हैं, पहले उसको खाना खिलाते हैं। मेरा इमाम गोश्त खा के वहीं पे गिर जाता है और कहता है कि हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा जिसको आखिरी वक्त में पानी तक नहीं। जनाब मिनहाल आए हैं मदीने में, कूफे से आए हैं। जनाब मिनहाल मदीने में आए हैं, सैयद सज्जाद के बैतुल शरफ में आए। उससे पहले की रवायत ये है कि आपके बैतुल शरफ के परनाले से जो है पानी गिर रहा था और उसने अपने दामन को समेट के इमाम के बैतुल शरफ में आया। तो कनीज बाहर निकल के आती है और कहती कि मालूम है ये पानी क्या है? ये पानी नहीं है। जब सैयद सज्जाद के सामने पानी लाके रखा जाता है ना वजू के लिए, तो मौला इतना रोते हैं कि वो पानी मुज़ाफ हो जाता है और फिर वो पानी फेंक दिया जाता है। तुम इससे अपने दामन को बचा रहे हो। अज़ादारो जनाब मिनहाल बैतुल शरफ इमाम में आते हैं। इमाम को रोता हुआ देख के कहते हैं, चाहने वाले हैं ना, इमाम को देख के रोता हुआ देख के कहते हैं सैयद सज्जाद को, आए आका, आए मेरे मौला, आखिर कब तक रोएंगे? कब तक आप रोएंगे? शहादत तो आपके घर की मीरास है। मेरे मौला ने अपना सरोसीना पीट के कहा, ऐ मिनहाल तुमने फैसला नहीं किया, तुमने हमारे दरमियान में अच्छा फैसला नहीं किया। मैं मानता हूँ कि शहादत हमारे घर की मीरास है। क्या ये भी है कि हमारी बहनें और फूफियों को सरबराहना एक गली से दूसरी गली, एक शहर से दूसरे शहर फिराया जाना? हाँ अज़ादारो, उसके बाद जनाब मिनहाल से कूफे के हालात पूछे कि ये मिनहाल ये बताओ कूफे में कैसे हालात हैं? कहा मौला कूफे में मुख्तार ने क़याम किया है और एक कातिलान इमाम हुसैन को मुख्तार जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे हैं, वासिले जहन्नम कर रहे हैं। एक मरतबा मेरा मौला कहता है ये बताओ हुरमुला पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा? मेरा इमाम कहता है अब आप सोचें कि हुरमुला ने कैसा जुल्म किया होगा कि जिसके लिए इमाम फरमा रहे हैं कि हुरमुला पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। तो अब जनाब मिनहाल कहते हैं कि नहीं हुरमुला तो नहीं पकड़ा गया था, मगर जब मिनहाल मदीने से कूफे की तरफ रवाना होते हैं तो उस दरबार की तरफ मुख्तार जिसमें थे एक शोर पैदा होता है, एक हंगामा होता है, एक हुरमुला पकड़ा गया है। अब जनाब में मिनहाल उसके पीछे पीछे हो लेते हैं कि मिनहाल के इसने क्या जुल्म किया है, इसने कैसा जुल्म किया है कि मेरा आका खून के आंसू रोता है, मेरा आका खून के आंसू रोता है। जरा इसके जुल्म को तो देखो। जब उस मलाऊन को
सैयद सज्जाद के सामने लाया गया ना, अब अब जनाब मुख्तार के सामने लाया गया तो जनाब मुख्तार पूछते हैं, ये बता मलऊन तूने कौन सा जुल्म किया है कि मेरा इमाम मदीने में तेरे लिए बात करता है। अज़ादारो उस मलऊन ने कहा, लेकिन मैं 7 तीर करबला में लेके गया था, 7 तीर मैं लेके गया था, मेरे 3 तीर तो बेकार हो गए, मगर मेरे 3 तीर ऐसे थे। लेकिन पहले तीर से अज़ादारो वो बयान कर रहा है कि पहला तीर मैंने अब्बास के मशकीदे पर मारा, सकीना के मशकीदे पर मारा, जिसके लगने से अरे अब्बास ने अपना इरादा बदल दिया और वो फुरात की तरफ मुड़ गए और वो मशकीदे से पानी सारा बह गया। और दूसरा तीर मैंने फरमाता है मुख्तार से, ऐ मुख्तार तुम सुन न सकोगे, पहले तुम अपने को मजबूत करो। कहा दूसरा तीर मैंने जब हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर को लेके मैदान में आए हैं और जब उसके लिए पानी का मुतालबा कर रहे हैं, अरे मैंने उस वक्त उस बच्चे के गले पर वो तीर मारा था जो जिसकी माँ दरे खैमा से देख रही थी। उस तीर के मारने से अरे वो बच्चा बच्चा बाप की आगोश में मुनकलिब हो गया। मैं कहूँगा नहीं अज़ादारो, बच्चा मुनकलिब नहीं हुआ, तीर बहुत वजनी था, असगर बहुत हल्के थे। जब तीर अली असगर के गले पर लगा था, असगर बाप की गोद में मुनकलिब हुआ। वो भी मलऊन कहता है कि मैंने आखिरी तीर मैंने, ऐ मुख्तार इसे तुम सुन न सकोगे, मैंने आखिरी तीर तुम्हारे आका हुसैन की पेशानी पर मारा, हुसैन की पेशानी पर। उस तीर का लगना था कि फिर हुसैन अरे तीर पर संभल न सके, तीर से जमीन पर आए। मलऊन ने सैयद सज्जाद को जहर दिया। मेरा दिल कहता है जब जहर किसी को दिया जाता है ना, उसे प्यास बहुत लगती है, उसे प्यास बहुत लगती है। मैं कहूँगा है सैयद सज्जाद, अरे आपको जहर दिया गया, आपका बेटा मौजूद था आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए, पानी पिलाने के लिए, मगर हाय रे मेरा मजलूम इमाम, हाय रे मेरा मासूम। Allah